जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। लखनऊ में भी ठंड पड़ रही है। जी अभी तो और पड़ेगी मेरे ख्याल में। जी जी अभी तो स्टार्टिंग है जी यही। स्टार्टिंग है। हाँ We will now start. We will start now. Huh? Okay. हाँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। तो थोड़ा सा तुमको बैकग्राउंड बता देते हैं कि ये जो है ना, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र के बाद, when everyone has been killed, only 5 Pandavas remain. एंड युधिष्ठिर महाराज बिकेम, मतलब वो जो है ना काफी दुखी हो गए थे, इतनी सारी मौत, मतलब सो मेनी पीपल वर किल्ड ना, तो वो काफी दुखी हो गए थे। एंड ही रिफ्यूज टू टेक ओवर द थ्रोन ऑफ हस्तिनापुर, है ना। वो इतना ज्यादा क्या नाम है, वो बिविल्डर हो चुके थे आफ्टर द बैटल। तो लॉर्ड कृष्णा सजेस्टेड दैट वी गो टू भीष्म देव टू टेक कमांड, दैट व्हाट शुड बी डन बिकॉज ही इज द हाउस एल्डर। एंड भीष्म देव को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। वो जो थे, ही वॉज लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोज, है ना। अभी उन्होंने अपना शरीर नहीं छोड़ा था। तो ये लोग सारे लोग गए थे वहां पर। तो वो ये जो भीष्म देव है, भीष्म पितामह, उन्होंने अपनी टीचिंग्स करी है। एंड क्या नाम है, ही हैज almost told him, मतलब he has told him to assume the throne of Hastinapur. मतलब he gives lot of teachings. तो ये यहाँ तक हो चुका है। अब वहां पर टेक्स्ट 39 में वो ये दिस प्रेयर क्या नाम है, हिज प्रेयर टू लॉर्ड कृष्णा कंटिन्यूज, मतलब ऑन हिज डेथ बेड। तो ये टेक्स्ट 39 में पढ़ता हूँ। विजय रथ कुटुंब आत्र तोत्रे धृत्य हैरश्मिने तच्छ्रिये शरण्ये भगवती रति रस्तुम मे मुमूर्षो यह मे निरीक्षय हता गता स्वरूपम। At the moment of death, let my ultimate attraction be Lord Shri Krishna, the personality of Godhead. I concentrate my mind upon the chariot driver of Arjun, who stood with a whip in his hand and a bridle rope in his left, who was very careful to give protection to Arjun's chariot by all means. Those who saw him on the battlefield of Kurukshetra attained their original form after death. Purport: a pure devotee of the Lord constantly sees the presence of Lord within himself because of being transcendently related by loving service. Such a pure devotee cannot forget the Lord for a moment. This is called trance. The mystic, ब्रैकेट में योगी, tries to concentrate upon the super soul by controlling the senses from all other engagements, and thus he ultimately attains samadhi. A devotee more easily attains samadhi or trance by constantly remembering the Lord's personal features along with his holy name, fame, pastime, etc. Therefore, the concentration of mystic yogi and that of devotee are not on the same level. The concentration of mystic is mechanical, whereas that of a pure devotee is natural in pure love and spontaneous affection. Bhishma Dev was a pure devotee, and as a military marshal, he constantly remembered the battlefield features of the Lord as Partha Sarthi, the chariot driver of Arjun. Therefore, the Lord's pastime as Parsaarthi is also eternal. The pastimes of the Lord, beginning from his birth at the prison house of Kans up to the Mausala Leela at the end, all move one after another in all the universes.
just as the clock hand moves from one point to another. And in such pastimes, his associates like Pandavas and Bhishma are constant internal companions. So Bhishma Dev never forgot the beautiful feature of the Lord as Parsarthi, which even Arjun could not see. Arjun was behind the beautiful Parsarthi, while Bhishma Dev was just in front of the Lord. As far as military features of the Lord is concerned, Bhishma Dev observed this with more relish than Arjun. All the soldiers and persons on the battlefield of Kurukshetra attained their original spiritual form like the Lord after their death. Because of the causeless mercy of the Lord, they were able to see him face to face on that occasion. The conditioned souls rotating in the evolutionary cycle from the aquatics up to the form of Brahma are all in the form of Maya, or the form obtained by one's own actions and awarded by material nature. The material form of the conditioned soul are all foreign races. And when the conditioned soul becomes liberated from the clutches of material energy, he attains the original form. The impersonalists want to attain the impersonal Brahman effulgence of the Lord, but that is not all congenial to the living spark, part and parcel of the Lord. Therefore, the impersonalists again fall down and get material forms, which are all false to the spirit soul. A spiritual form like the Lord's, either two-handed or four-handed, is attained by the devotees of Lord either in the Vaikuntha or in Goloka planet, according to the original nature of the soul. This form, which is 100% spiritual, is called Swarupa of the living being. And all the living beings who participated on the battlefield of Kurukshetra on both sides attained their Swarup as confirmed by Bhishma Dev. So Lord Krishna was not merciful only to Pandavas, he was also merciful to other parties because all of them attained the same result. Bhishma Dev wanted the same facility also, and that was his prayer to the Lord. Although his position as an associate of Lord is assured in all circumstances, the conclusion is that whoever dies looking on the personality of Godhead, within or without, attains his Swarupa, which is the highest perfection of life. यहाँ पर जो है ना परपोर्ट में बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर कट कर दिया है प्रभुपाद ने कि क्या मतलब what is it that we should be doing throughout life, not just at the time of death. You see, he has told that, which is coming from the prayer itself, that first of all he told about the difference between a mystic yogi and a devotee. A mystic yogi achieves he is able to concentrate on the Supreme Lord by controlling his senses. But whereas devotee he achieves the spontaneous love, you see, by constantly thinking about the Supreme Lord while doing his daily chores or work or duty or whatever. He is doing that all the time, and he develops a pure affection to the Supreme Personality of God in one of the 5 forms. What is that? दास्य की फॉर्म में है, उसके बाद में फ्रेंड की फॉर्म में, वात्सल्य रस पेरेंट्स की फॉर्म में, या लवर की फॉर्म में, माधुर्य रस में, या फिर शांत रस में, in kind of just शांत रस, which is called kind of a neutral position. So you see, he is far superior, because there is a chance of a mystic yogi
as soon as even slightest deviation from his, matlab, if his senses are just go even for some time out of his control, he falls down. Whereas for a devotee, there is no chance, you see, because that love is something which he has attained. He has developed that kind of love. So whether the object of love is with him or not, is away from him, it doesn't matter. ये यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई, और उन्होंने ये भी बताया कि इसी जो वरुण बार बार कहते हैं कि द एब्सोल्यूट फीचर ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, you see, he not only delivered Bhishma Pitama, but all those who were in front of him in the battlefield. Equally, they all achieved their स्वरूप सिद्धि. मतलब वो ये जो है ना, आज तक मुझे क्लियर नहीं हुआ, पहली बार मुझे ये क्लियर हुआ है व्हाट इज स्वरूप सिद्धि. Where you attain your original form. We all are individuals and we attain that purest individual form by devotional service. Whereas the impersonalist, or those who want to get merged in the Brahma Jyoti, they still fall down and again have to come into the cycle of birth and death. ये यहाँ पे ये सब चीजें बताई है उन्होंने. और उन्होंने इवन ये भी कहा है कि you see, Arjun was in the friendship mode, you see, with the Lord till the end. Whereas Bhishma Dev was actually, because he was a general, so you see, he fell in love with the martial form of the Supreme Lord, Parthasarathi. He saw him in the battlefield in the kind of a fighting gear. Although he was a chariot driver, but he saw him, he saw his mood, he fell in love with him in that form. So he always remembered him as Parthasarathi. See, some person remember Lord Krishna as Bal Gopal. Some people take him as his lover. वो रास लीला में वो जो है बहुत सारी मीरा बाई थी में, वो she fell in love with the Supreme Lord. See, like that people develop with different kinds of जो रस है. तो ये बड़ा मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है purport. I am finding it absolutely illuminating. स्वरूप सिद्धि क्या चीज होती है. See, it is a, मतलब जब आप ये करते रहेंगे ना, तो then you will fall in love with the Supreme Lord. भाई वरुण तो ये बताते हैं कि वहां पे अमेरिका में एक आध बार ये भगवान की बाल लीला की फोटो ये वहां पे कराने गए, और वहां पर वो लड़के दे became so much attracted to. बताओ तुम बताओ. एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जैसे जो भगवान की जैसे कुछ ये जो लगी हुई हैं पीछे, तो ये मेरे पास पहले नहीं थी, तो मेरे पास जैसे फोटो फॉर्म में थी, मतलब बुक्स में, तो मैं उसको फोटो कॉपी कराने ले गया था, कलर्ड फोटो कॉपी, यूपी मतलब बगल में फोटो कॉपी शॉप पे. तो ये अमेरिकन लड़के जिनको भगवान कृष्ण के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिनको इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, वो लोग इतना देख के बिल्कुल भौचक्के हो गए थे, बिल्कुल वो मेस्मराइज्ड हो गए थे कि ये क्या है, कि मतलब ये ब्लू कलर्ड बॉय और उसकी मदर जो है वो उसका मुंह खोल रही है और उसका पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा है, एक उसमें ऐसे एक मतलब मदर यशोदा जो है भागे जा रही है उसके पीछे, बच्चे डंडा के पीछे लेके, डंडा लेके. तो देवर मतलब बिकॉज लॉर्ड कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, बिना वो हुए ही उनकी लीलाएं जो हैं दे अट्रैक्ट की मतलब द ह्यूमन बीइंग, कि भाई ये क्या है ये इस तरह से. उनका नाम कृष्ण का मतलब ही है ऑल अट्रैक्टिव. कृष्ण का मीनिंग ही है ऑल अट्रैक्टिव. यहाँ पे इन्होंने अपने वहां पे मंदिर के अंदर में बाहर लॉबी में ये जितनी भी उनके पास टाइम्स की प्लेट्स है ना, उसको इन्हें 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 स्लाइड शो मोड में डाल दिया. तो लोग वहां पे दे जस्ट कीप ऑन स्टेयरिंग, दे आर स्टॉप्ड इन देयर ट्रैक्स. बिल्कुल, बस थोड़ी देर से कभी वो कोई ना कोई फोटो वो देखते ही चले जाते हैं. मतलब मैं देखता हूँ कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट, मतलब कि एक फोटो के बाद एक फोटो के बाद, मतलब लॉर्ड कृष्णा की यही जैसे जो पीछे फोटोज हैं वही स्लाइड शो बना दिया है. तो कभी कभी जैसे लोग उसे देखेंगे तो बस वो देखते ही रह जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, फिर ये क्या हो रहा है.
It is really, मैंने उसको देखा, I've seen it in action. People become so attracted, वो देखते ही चले जाते हैं. Or anybody else feels anything about this verse? Text 40. चलो वरुण तुम पढ़ो या कोई रूपा भी पढ़ सकती हैं. नेक्स्ट पढ़ रही हैं. ललिता गति विलास वल्गुहासा प्राणाय निरीक्षाण कल्पितोरुमानः कृता मनु कृता वत्य उन्मादान्धा प्रकृतिम अगान किला यस्य गोपवद्वा. Translation. Let my mind be fixed upon Lord Sri Krishna, whose motions and smiles of love attracted the damsels of Rajadham, the gopis. The damsels imitated the characteristic movements of the Lord after his disappearance from the Rasadan. Purport. By intense ecstasy in loving service, the damsels of Rajbhumi attained qualitative oneness with the Lord by dancing with him on an equal level, embracing him in nuptial love, smiling at him in joke, and looking at him with a loving attitude. The relation of the Lord with Arjun is undoubtedly praiseworthy for devotees like Bhishma Dev, but the relation of the gopis with the Lord is still more praiseworthy because of their still more purified loving service. By the grace of the Lord, Arjun was fortunate enough to have the fraternal service of the Lord as chariot driver, but the Lord did not award Arjun with equal strength. The gopis, however, practically became one with the Lord by attainment of equal footing with the Lord. Bhishma's aspiration to remember the gopis is a prayer to have their mercy also at the last stage of his life. The Lord is satisfied more when his pure devotees are glorified, and therefore Bhishma Dev has not only glorified the acts of Arjun, his immediate object of attraction, but has also remembered the gopis who were endowed with unrivaled opportunities by rendering loving service to the Lord. The gopis' equality with the Lord should never be misunderstood to be like the Sayujya's liberation of the impersonalist. The equality is one of perfect ecstasy where the differential conception is completely eradicated, for the interest of the lover and the beloved become identical. Another very brilliant purport. बिल्कुल उन्होंने कई चीजें जो है एक्चुअली जो पिछली प्रेयर और इस प्रेयर में वो बिल्कुल बता रहे हैं भीष्मदेव कि भाई आपको क्या करना चाहिए भगवान के को रिमेम्बर करने के लिए. यू सी ही इज टेलिंग हियर. इसमें जो है लास्ट में आकर के वो यहाँ पर इस जगह पे वो गोपियों का गोपियों का वो गुणगान कर रहे हैं बड़ा सॉलिड वे में. मतलब वो बिल्कुल भाई वो जो है ना उनका लव जो है प्योरेस्ट है. यू सी मतलब जस्ट लाइक मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड में तो ये मेल और फीमेल का जो लव है ना वो कुछ भी नहीं है उसके मुकाबले में. दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेयर द गोपीज they attain that kind of highest form of pure love with the जहां पर कि interest of the beloved and the lover becomes one, identical. You see मतलब it is very everyone cannot understand this. ये जिसको बार बार बोलते हैं ना परम गुह्यतम. You see there is a legend that nobody is allowed to witness the transcendental rasa dance, including all devatas और ये वो. Lakshmi ji का नाम है. Lakshmi ji was not allowed to witness the rasa dance. Who is in the constant service of the Supreme Lord, yet she was denied. तो फिर जब उन्होंने वो किया है रिक्वेस्ट तो आई थिंक शी वॉज गिवन some kind of a मतलब कोई ट्री फॉर्म या क्या पता नहीं मुझे याद नहीं जा रहा है where she could see in a different form
the rasa dance. वैसे ही शिव जी ने बड़ी रिक्वेस्ट करी है उनको, तो पता नहीं कब पर्वत बनाया है या कुछ ऐसा कुछ है, पता नहीं, आई डोंट नो, बट आई डोंट रिमेम्बर, बट दैट इज द मोस्ट. इसीलिए जो रास लीला के बारे में ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं जो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ, जो प्योरेस्ट डिवोटी है ना, कहते हैं कि इट इज बियॉन्ड अस टू अप्रिशिएट दैट काइंड ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव. वी कैनॉट, क्योंकि एक्चुअली हम मैं लोग जो उसका है ना, थोड़ा सा ये आई जस्ट गिव वन इंस्टेंस ऑफ इट कि जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि अब लॉर्ड कृष्णा जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, उनके पास 6 ऑपुलेंसेस हैं, हर तरह से वो हैं, सक्षम हैं, येट उन्होंने सिर्फ 2 इंस्टेंसेस में ये बात कही है कि एक तो गोपियों से उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हारा लव कभी नहीं रीपे कर सकता. ये लॉर्ड कृष्णा कह रहे हैं, हु इज फुल्ली ऑपुलेंट, सब पावर्स हैं, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, और वो गोपियों से उन्होंने कहा है कि आई कैन नॉट रीपे व्हाट योर लव इज टू मी. एंड यही बात उन्होंने रुक्मिणी माता से कही है. 2 लोगों से इन्होंने कहा है. रुक्मिणी माता का भी आगे चल के पढ़ेंगे कि बहुत ही बहुत हाई लेवल बहुत का डेडिकेशन डायलॉग है है. लॉर्ड कृष्णा के साथ. हाँ, लेकिन दो लोगों को उन्होंने कहा है. दैट इज हाउ मच हाई एस्टीम लॉर्ड कृष्णा केप्ट द गोपीज, कि वो खुद मतलब नहीं रीपे कर सकते थे उनको उनका लव इस तरह का. बड़ा ब्रिलियंट है कि ये भीष्म देव जो हैं उनको याद कर रहे वो हैं. ग्लोरीफाइड कर रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी Glorify. उसको यही बता रहे हैं कि भाई, मतलब कि उनके डिवोटीज को ग्लोरीफाई करना, वो दैट उनकी कृपा चाहिए आपको भगवान तक पहुंचने के लिए. ब्रजभूमि की गोपियों की, और उनकी हेड गोपी कौन है? राधा रानी है, हु इज द मोस्ट लव्ड आफ्टर कृष्ण बाय लॉर्ड श्री कृष्णा. एक चीज इसमें और इस वाले श्लोक में बड़ी ब्रिलियंट है, जो कि मतलब कि जब आगे चल के कि अ, गोपियों ने सेपरेशन में जब भगवान से सेपरेटेड हो गई हैं, तो उसमें वो क्या करती हैं कि दे विल स्टार्ट इमिटेटिंग, कि मतलब एक कृष्णा बन जाएंगे और उनकी लीलाओं को इमिटेट करने लग जाएंगे कि भाई तुम कब कृष्णा बनो, ये पूतना बनेगी, तो कैसे भगवान ने इस तरह किया. ये तो ये एक्चुअली हम लोगों के लिए बड़ा, वो यही जैसे इसमें लिख रहे हैं, द डैमसेल्स इमिटेटेड द कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट्स ऑफ द लॉर्ड आफ्टर हिज डिसअपीयरेंस फ्रॉम द रासदान. जैसे भगवान को इमिटेट, इस ये हम लोगों के लिए बड़ा वो है कि भाई हम लोग भी सेपरेटेड हैं लॉर्ड कृष्णा से, तो उनकी कथाएं पढ़ के, उनकी लीलाएं पढ़ के हम भी वही कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं. तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि भाई मतलब जैसे जो गोपियां कर रही हैं उस डायरेक्शन में एटलीस्ट हम कर रहे हैं कि भगवान की कथाओं को बार बार पढ़ के, उनको समझ के, ये मुझे लगता. वेरी नाइस. चलो अभी नेक्स्ट कर मैं रूपा, कैन यू रीड? हाँ, 41. मुनिगण नृप वर्ष संकलेतः. अच्छा, मैं इसी को देखी पढ़ू इंग्लिश. मुनि गणा नृपा वर्यासन कुले नतः सदासी युधिष्ठिरा राजाश्यु एषम अशः नमः उपापेदा ईशान्यो ममः दृशि गोकरा एषा अविर आत्मा. Translation. At the Rajana sacrifice performed by Maharaja Yudhishthira, there was the greatest assembly of all the elite men of the world, the royal and the learned orders. And in that great assembly of Lord Krishna was worshipped by one and all as the most exalted personality of Godhead. This happened during my presence, and I remembered the incident in order to keep my mind upon the Lord. Purport. After gaining victory of the battle of Kurukshetra, Maharaja Yudhishthira, the emperor of the world, performed the
Raj sacrificial ceremony. The emperor in those days, upon his ascendance to the throne, would send a challenge horse all over the world to declare his supremacy, and this ruling prince and king or king was a liberty to accept the challenge to express his tacit willingness either to obey or to disobey the supremacy of the particular emperor. One who accepted the challenge had to fight with the emperor and establish his own supremacy by victory. The defeated king would have to sacrifice his life, make a place for another king or ruler. So Maharaja Yudhishthira also dispatched such challenging horses all over the world, and every ruling prince and king all over the world accepted Maharaja Yudhishthira's leadership as the emperor of the world. After this, all rulers of the world under the regime of Maharaja Yudhishthira were invited to participate in the great sacrificial ceremony of Rajsuya. अच्छा ये राजसूय यज्ञ वाला होगा हाँ राजसूय वही हाँ, राजसूय Rajasuya. यज्ञ Yes, Rajasuya. वही इसमें आर नहीं था ना सो आई राजसूया. Rajasuya. Such performances required hundreds of millions of dollars, and it was not an easy job for the pretty king. Such a sacrificial ceremony, being too expensive and also difficult to perform under present circumstances, is now impossible in this age of Kali. Nor can anyone secure the required expert priesthood to take charge of the ceremony. So, after being invited, all the kings and the great learned sages of the world assembled in the capital of Maharaja Yudhishthira. The learned society, including the great philosophers, religionists, physicians, scientists, and all great sages, was invited. That is to say, the Brahmanas and the Kshatriyas were the top most leading men in society, and they were all invited to participate in the assembly. The Vaishyas and the Sudras were unimportant element in society, and they are not mentioned herein. Due to the change of society activities in the modern age, the importance of men has also changed in terms of occupational positions. So, in that great assembly, Lord Sri Krishna was the cynosure of neighboring eyes. Everyone wanted to see Lord Krishna, and everyone wanted to pay his humble respect to the Lord. Bhishma Deva remembered all this and was glad that his worshipful Lord, the personality of Godhead, was present before him and his actual formal presence. So, to meditate on Supreme Lord is to meditate on the activities, form, pastime, name, and fame of the Lord. This is easier than what is imagined as meditation on the impersonal feature of the Supreme. In the Bhagavad Gita 12.5, it is clearly stated that to meditate upon impersonal feature of the Supreme is very difficult. It is practically no meditation or simply a waste of time because very seldom is the desired result obtained. The devotees, however, meditate upon the Lord's factual form and pastime, and therefore the Lord is easily approachable by the devotees. This is also stated in the Bhagavad Gita 9. The Lord is not different from his transcendental activities. It is indicated also in this sloka that the Lord Sri Krishna, while actually present before human society, especially in connection with the battle of Kurukshetra, was accepted as the greatest personality of the time, although it could not have been recognized as the supreme personality of the Godhead. The propaganda that a very great man is worshipped as God after his death is misleading because a man after his death cannot be made into God, nor can personality of Godhead be a human being, even when he is personally present. Both ideas are misconceptions. The idea of anthropomorphism can't be applicable in the case of Lord Krishna.
ये वाला जो Here he पार्ट was है, emphasizing on कि meditation से भी higher है, that you live in the remembrance of various form of God, the leelas, the reading and all, हम्म, as it is easily understood by the common people like us. I Correct. think so. Not only है ना easier, वरुण? but बिल्कुल मौसी, आ गए? बिल्कुल या गो अहेड पापा। नहीं, you please, हाँ। एक्चुअली ये बिल्कुल जो मौसी आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि मतलब ये जो ना कि इम्पर्सनल फीचर को आप जैसे वो जो इम्पर्सनल की मतलब निराकार जो उसको वही वो कह रहे हैं कि वो इवन भगवत गीता में भी मना किया है कि उसको ऊपर मेडिटेट करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वेरएज ये जो है लॉर्ड कृष्णा की लीलाओं को के ऊपर मनन करना, जैसे ये जो वही जो भीष्म पितामह कर रहे हैं एक के बाद एक, जैसे उनका कुरुक्षेत्र में याद कर रहे हैं, फिर गोपियों के साथ याद कर रहे हैं, फिर राजसूय यज्ञ में उनको याद कर रहे हैं, जहां जहां उन्होंने मतलब उनको वो जब बहुत ज्यादा आसान है, वही तरीका है डिवोटीज के लिए। इसीलिए एक्चुअली में बड़ा जो डिवोटीज जो यहाँ पे सीनियर डिवोटीज है वो यही कहते हैं कि भगवत गीता तो एक्चुअली हम लोगों के लिए है, बट एक्चुअली में अगर आपको लव डेवलप करना है टू लॉर्ड कृष्णा तो श्रीमद् भागवतम आप जैसे पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे दैट इज योर लव फॉर लॉर्ड कृष्णा। क्योंकि श्रीमद् भागवतम पूरी सिर्फ भगवान की एक्टिविटीज से भरी हुई है, क्योंकि भगवत गीता में तो वो हम लोग को उपदेश दे रहे हैं, हम लोग को समझा रहे हैं, वो भी उनकी एक्टिविटी है बट वो हमको समझा रहे हैं। इसमें तो उनके डिवोटीज और उनकी एक्टिविटीज का पूरा विस्तार है श्रीमद् भागवतम में। इसीलिए श्रीमद् भागवतम जो है वो लव जनरेट करता है फॉर लॉर्ड कृष्णा, ये ऐसा मतलब जो बताया गया है। कि तो एक कॉमन पीपल के कंसाइंस की अप्रोचेबल मैटर है, टेक्स्ट है। अगर जैसे वो बता रहे हैं, जैसे हम लोग अपनी जिंदगी जीते हैं, हम लोग भी कभी किसी से प्यार करते हैं, हम डिफरेंट रिश्तों में डिफरेंट कनेक्शंस एंड चीजें फील करते हैं, तो इट इज वेरी मच पैरेलल टू द अंडरस्टैंडिंग कि हाँ वो कैसे करते थे रिलेटेबल। और हम भी ऐसे कर रहे हैं, तो हम उनको कहीं ना कहीं फॉलो कर सकते हैं, उनके लिए ऐसा फील कर सकते हैं। और ऐसा मुझे लगता है वाकई में कि हम हर इंडिविजुअल अपने तरीके से भगवान को इस भगवतम पढ़ते 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 एक जिस तरफ भी उसका रस पैदा होता है, फिर वो अल्टीमेटली वो निराकारा वाली हाईएस्ट फीलिंग वो उनका काम है हम लोगों को अंदरूनी तौर पे देना। वो हमारे प्रयास से हमें नहीं मिलेगी, हमें तो एक जैसे हम अपने सेंसेस को फील करते हैं, उन सेंसेस को पूरा सराबोर कर देना है उनके प्रेम में, just like और रूपा the gopis इस or the great जिया जी individual इसका beings। हाँ, इसको पढ़ने का एक एडवांटेज मुझे ये बहुत लगता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को हम लोग इस तरह से बार बार रिकॉल करेंगे तो हम डिस्ट्रैक्शन से भी बच जाएंगे। हाँ, मानो हाँ, Yes, क्योंकि yes, सेंसेस this कुछ is ना कुछ तो another करते very रहते big aspect. Yes, very जी correct. Very big and practical aspect जी जी of हैं। diverting हाँ, your attention from the हम्म troubles and travails of this material world. हम्म And उसका क्या नाम है, हाँ, ये जो है ना वो जो अभी जैसे रूपा ने कहा ना कि अपने सेंसेस को भगवान की सेवा में लगाना, हम्म यू सी वो जो है, अदरवाइज तो आपका माइंड जो है वो माइंड को और अपने सेंसेस को डाइवर्ट करना है। वही जो हम्म एक तो समाधि लेना है कि आप मतलब वो जो इम्पर्सनलिस्ट है वो उस निराकार उसमें वो सोचता रहता है, वो भी क्या नाम है मतलब यूसी एक तरीका तो वो है जो मिस्टिक योगीज का है। बट ये जो डिवोटीज का तरीका और जो रूपा ने कहा ना वो है क्या नाम है, दैट इज वेयर ये जो कि भगवान का जो पर्सनल फीचर जो है पर्सनल, ही इज अ पर्सन, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, he is a supreme person. That is what makes him different from all other philosophies. And इस फिलोसफी में इसीलिए उनकी लीलाएं, इसलिए जो वो भी उसने रूपा ने जो कंक्लूड किया ना वो भी बिल्कुल करेक्ट है कि कॉमन मैन के लिए ये जी तभी उन्होंने, भगवान ने खुद ही कहा है जन्म कर्म च मे दिव्यन, जो मेरा जन्म और कर्म है वो दिव्य है।
उसको, ये कथा को ही आप सुनते रहो और यस कथाओं को क्या नाम है के ऊपर मनन करने से ही आपको स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। एक्चुअली इसमें तो ये मुझे और पापा का जो हमारा डिस्कशन हुआ है, हमको तो अब ये कन्विंस हो गए हैं कि हिंदू रिलीजन एक्चुअली या सनातन धर्म इसीलिए बच गया है क्योंकि ये कथाएं होती रहती थी होती एक्चुअली में। रहती थी। 1960s 70s तक के भी श्रीला प्रभुपाद के जो अकाउंट हैं उसमें कहते थे कि शाम को लोग घर से काम करके घर आते थे, खाना खा के फिर ये भागवतम वगैरह पढ़ते थे क्योंकि उस समय वैसे भी कोई टीवी वगैरह तो होता नहीं था, तो इससे पढ़ के वो अपना सारा अपने आप को रिलैक्स करते थे, इसी से सीखते थे। ये एक्चुअली इसी का एक पैरेलल वो भी है जैसे तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी, क्योंकि भाई पहले तो वाल्मीकि जी की रामायण तो संस्कृत में थी, अब वो तो ऑर्डिनरी लोग कैसे समझ पाएंगे, तो उन्होंने अवधी में रामचरितमानस लिखी ताकि लोग उसको प्ले के रूप में कर सकें। हम लोगों का तो यही मानना है, इसी वजह से ये सनातन धर्म बच गया है और इसी वजह से बचा रहेगा। अगर ये पढ़ते नॉट ओनली रहेंगे लोग दैट, यू सी, तो बिल्कुल बच सही कह रहे हो। देखो, और नॉट ओनली उसमें भी, और देखो रामलीला का करने का क्या पर्पस था, टू डेवलप लव विद द सुप्रीम लॉर्ड। रामलीला का पर्पस, जो भगवान कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का ये, पर तुम लोगों को पता नहीं, बचपन में बड़ा याद है, बच्चे घर में कर में झांकी बनाते थे भगवान की वेरियस चीजों के साथ में, कि वो गाय के साथ में है, कोई कहीं पर वो दूध दूह रहे हैं, कहीं पर उनकी माँ दूध दूह रही है, ये यू सी इट वाज ऑल। और लोग घर, एक घर के बाद दूसरे घर के बाद तीसरे घर जा जाके देखते थे झांकियां। मंदिरों में कर में पूरी उनकी लीला का कर में एक वो, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप के बाद तीसरा स्टेप, वो सब दिखाया रहता था, यू नो। अब अभी भी पता नहीं होता होगा, बट मतलब अब यू सी, रामलीला पहले तो पूरे मैदान में हुआ करती थी, बिल्कुल प्योर फॉर्म में, और वो सारे डायलॉग्स के साथ में, और फिर उसके बाद में स्टेज पे आ गई, और अब जो है अब तो मतलब यू नो, फिर भी यू सी, दिस इज जो हमारा तो बिल्कुल पक्का मानना है कि इसीलिए लोग, पीपल यूज टू फॉल इन लव विद देयर गॉड, तो वो कन्वर्ट होने में उनको बहुत तकलीफ होती थी, बड़े मुश्किल से कन्वर्ट हो पाते थे। ये दे कुड नॉट बी कन्वर्टेड एट द, मतलब अदरवाइज यूरोप वगैरह में क्या हुआ, क्रिश्चियनिटी आई तो उन्होंने, क्रिश्चियनिटी यूरोप में कैसे फैली है, राजा ने क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट कर ली, सारी प्रजा क्रिश्चियन हो गई। यहाँ पे हजारों साल तक में मुसलमानों का राज रहा, सैकड़ों साल तक ब्रिटिशर्स का राज रहा, बट दे कुड नॉट कन्वर्ट। अंग्रेजों ने तो यही किया ही, उन्होंने सबसे पहले यहाँ के कल्चर को खत्म किया, जो मुगल्स भी नहीं खत्म कर पाए थे। Yes. ये भागवतम वगैरह को माइथोलॉजी है, ये तो माइथोलॉजी है, आपके दिमाग की उपज है, ये जो है ना, ये सब ये सब कर करके ट्रैश करके जो एलिट्स है ना, जो साले थोड़ा बहुत अंग्रेजी पढ़ना से बोलना सीख गए हैं, वो बेवकूफों को ना, उनको ABCD किसी चीज का कुछ पता नहीं है, जबकि अब वो तो सबसे बड़े आर्कियोलॉजिकल बेवकूफ है सर्वे, नंबर 1 के। हाँ वो तो मतलब आई हैव ओनली सिंपल हेटरेड फॉर देम, जबकि हम खुद नहीं कर में वो अंग्रेजी और वो ये वेस्टर्न उसके बड़े वो थे फैन, बट दे आर द वंस हु हैव कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इंडिया। तो 42 आप हाँ पढ़ोगे आप? 42, हाँ मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे एक चीज मेरे हाँ हाँ, में यस आ यस, रही है प्लीज गो अहेड। या कि मैं अपनी लाइफ में कई बार सोचती थी, आई विल नॉट टेक द नेम, ठीक नहीं लगेगा, कि जैसे हमारी सोसाइटी में हैं कुछ लोग रियली रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे हैं, कंसीडर्ड, बिकॉज उन्होंने जो बुक्स लिखी हैं मैंने खुद भी पढ़ी हैं। तो देर आर टू टाइप ऑफ पीपल, जैसे जिनको नहीं गुरु मिले हुए हैं, वो जब ढूंढते हैं, जैसे आपने सुना होगा इसमें सोसाइटी में जग्गी वासुदेव, हालांकि आई एम नॉट द राइट पर्सन, बट मैं अपना थॉट रख रही हूँ कि देर इज अ टू कॉन्सेप्ट। जब इस तरीके की कोई चीज प्रैक्टिस कर रहे होते लोग, नहीं मैं भक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, कृष्णा कॉन्शियसनेस की नहीं, अपनी ओर से कोई प्रयास कर रहा है, तो एक स्टेट आती है इसी प्रैक्टिस में कि आदमी बियॉन्ड माइंड चला जाता है, मतलब माइंड उसके लिए उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, जैसे इनके बारे में कहा जाता है, जग्गी वासुदेव के बारे में। और ये जो इस तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, भक्ति में जाते हैं, प्रेम के रास्ते से जाते हैं, भक्ति योग का रास्ता लेते हैं, तो कहीं मैंने ये चीज पढ़ी थी कि इट इज मच मच हायर देन,
जिनकी मैं गीता पढ़ती हूँ, राम सुखदास जी की, उन्होंने बताया है कि कुंडलनी जागरण होना या बियॉन्ड माइंड चले जाना या किसी तरीके की कोई अपर लेवल सिद्धि प्राप्त कर लेना सांसारिक चीजों की फुलफिलमेंट वाली, दिस ऑल इज लाइक धूल बिफोर भक्ति एंड प्रेम। ये चीज मैं बहुत सोचती थी कि मतलब अच्छा हम बियॉन्ड माइंड चले गए तो कितनी बड़ी बात है, लेकिन कई जगह भगवान ने ये चीज कही है कि प्रेम से जो चीज मेरे पास आता है, जो मुझे प्रेम करता है, उसके साथ अब क्या ही बोले इसको, वो तो जिसको मिलता है वही जानता है। और वो बार बार इस चीज को बता रहे हैं कि हमारे साथ प्रेम का रिश्ता रखने वालों को मैं ज्यादा जाहिर सी बात है प्यार करता हूँ। उनको वो देना चाहते हैं जो उनसे जो मांग रहा है। तो हियर इट इज बीन एम्फसाइज्ड कि आप भगवान के साथ प्रेम का रिश्ता करें। और ध्यान से देखें तो हमें ऐसा लगता है, मैंने अपनी जिंदगी में पाया, शायद मैं एक लेडी हूँ, मैं एक इमोशनल लेडी हूँ, कि दुनिया में हम ध्यान से अगर ढूंढे क्या ढूंढ रहे हैं हम आत्मा लेवल पे, तो हम प्यार ही ढूंढ रहे हैं। बाकी सब सब्स्टिट्यूट है उसका, चाहे इकोनॉमिकल स्टेटस हो, चाहे एक अच्छी प्रोफाइल जॉब की हो, चाहे बहुत अच्छी फैमिली हो, चाहे कुछ हम कॉन्कर करना चाहते हो, दिस ऑल इज सब्स्टिट्यूट ऑफ लव and which we have to attach, give, क्या बोले इसके लिए, क्या शब्द सही रहेगा, to our God only, सिर्फ प्यार करना है, यही चाहिए, यही तृप्ति देता है, जी जी, ऐसा मुझे इसको फील होता है। वही जीजा जी इसको एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बच्चा है, ठीक, तो जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माँ का प्यार है। उसको खिलौना भी मिल सकता है, तो अगर आपको बहुत ज्यादा रिद्धि सिद्धि ये सब चाहिए तो इसका मतलब आप खिलौने की तरफ जा रहे हैं, और अगर आपको माँ का प्यार चाहिए तो फिर आप भक्ति करिए। सिंपल, मुझे तो ऐसा मेरे लगता है। पास, हाँ, हाँ दोनों जगह हाँ, अपनी हम इस अपनी बात जगह पे, पे कर्म है। यू सी, बोथ ऑफ यू हैव, जो कि कर्म है, जो हम लोग जो लिटरेचर ये पढ़ रहे हैं उसमें बिल्कुल यही सब चीज। यू सी, क्या है कि जब आप इस तरह की कर्म है सिद्धि प्राप्त करने की जो कोशिश करते हैं ना, वो बेसिकली दे आर द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ मटेरियलिस्ट। उनको तो कर्म है मतलब वो इससे ये करके कर्म है वो मटेरियल बेनिफिट्स पाना चाहते हैं, जी, नो, बेसिकली। वेयरएज वो आपका लाइफ का पर्पस है ही नहीं है, नंबर वन, है ना, वो तो है ही नहीं है। सो यू आर नथिंग, जो उन्होंने कहा ना धूल के बराबर है, बिल्कुल सही कहा है, वो तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। और जो रूपा ने ये भी कहा ना कि हमारा एवरी वन वॉन्ट्स टू बी हैप्पी एंड गेट लव एंड बी लव्ड, एंड लव करने का भगवान कृष्ण से बढ़िया चीज कौन हो सकती है भाई? ही इज ऑल अट्रैक्टिव, एक्चुअली है भी। इट हैज बीन प्रूवन टाइम एंड अगेन, नॉट ओनली हिज फॉर्म इज attractive, his leelas are attractive, everything is attractive। लेकिन आपको attractive तभी लगेगी जब when you will approach those things in devotion। अगर आप उसको अपने मटेरियल माइंड से अप्रोच करेंगे, लॉजिक और उससे भी अब तर्क वितर्क में, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम। साफ बात है। वही जो तुमने कहा ना, वो जो कि भाई कि ये जो वात्सल्य रस वाली जो बात है ना, वो है ना, मैं सिंपल द अदर वे राउंड, लॉर्ड कृष्णा अपनी लीला करके ही दिखा रहे हैं। मतलब वो मरे जा रहे हैं कि ही वांट्स टू फील कि हाउ ए मदर लव्स द चाइल्ड, बिकॉज ही हैज नेवर बीन। तभी वो बेचारे आ करके यहाँ पे वेरियस रोल्स कर रहे हैं। यू सी, ही इज एनवियस ऑफ अस इन ए वे, मतलब आई डोंट नो हाउ मच हाँ, तो तभी तो इसका करेक्ट है। यू तभी सी, तो उन्होंने एक्चुअली हाँ, तभी तो उन्होंने उन्होंने फिर ये चैतन्य महाप्रभु का रूप महाप्रभु लिया। रूप लिया कि वो श्रीमती, एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा एक्सपीरियंस करना चाहते थे कि गोपियों को और स्पेशली श्रीमती राधा उनको रानी, क्या व्हाई ऐसा डज मिलता शी है? लव हिम सो मच, वो इतना क्यों इनको लव करती हैं, या क्या ऐसा है, वो कैसा लव एक्सपीरियंस करती हैं। तो इसलिए लॉर्ड कृष्णा चैतन्य महाप्रभु में श्रीमती राधा रानी के मूड में आए हैं, उस मूड में आए हैं,
जो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु हैं वो लॉर्ड कृष्णा इन द मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी. तो ही वांट्स टू एक्सपीरियंस द लव दैट गोपीज फील. He wants, Lord Krishna wants to feel that love. गोपियों को वो सेपरेशन में कैसा लव फील होता था, गोपियों को लॉर्ड कृष्णा के बारे में सोच के कैसा फील होता था, उनके बारे में जप करके कैसा फील होता था, उनकी लीलाएं करके कैसा फील होता था, यही सब चैतन्य महाप्रभु कर रहे थे. बिकॉज इट्स बेसिकली लॉर्ड कृष्णा वांट्स टू एक्सपीरियंस दैट लव जो गोपियां एक्सपीरियंस कर रही थी. इस तरह का लॉर्ड का है एक्चुअली. हाँ, इसी तरह यार भाई, इट इज रियली गौड़िया वैष्णव ये जो है, इट इज रियली एब्सोल्युटली philosophy. सबलाइम, ब्यूटीफुल. और ऐसा नहीं है, मतलब ये आप देख ही रही हैं कि इन्होंने मतलब डेथ को भी कितना ग्रेसफुली हैंडल किया है. अच्छा, पायस लोगों के साथ कितना बुरा होता है उसको भी पिछले श्लोकों में हैंडल किया है. मतलब कि कुंती माता जो, मतलब इन लोगों के ऊपर कितनी मुसीबतें आई उसको भी हैंडल किया. मतलब हार्शनेस ऑफ रियलिटीज को भी डील किया है और लव को भी डील किया है. और कैसे हार्शनेस ऑफ लाइफ को डील किया जाए while trying to be in love with Lord. नहीं, आप हम लोगों की पर्सनल लाइफ को भी देखो ना. आप हम लोगों ने सब ने वेरियस बुक्स पढ़ी हैं, अभी भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन यू सी आई एम वेरी श्योर कि आप जाकर के यहाँ पर ही अटक जाएंगे. हम लोगों ने तो बिल्कुल वी हैव जस्ट, मैंने तो रद्दी के भाव में निकाल दिए हैं बाकी सारी भगवत गीता रद्दी में. आई हैव नॉट गिवन टू एनीबडी एल्स. श्री अरविंदो की और ये में ये जो है ना वो कृष्णा मूर्ति एंड खार टोले एंड ये मैंने उसको किसी को दिया भी नहीं है, ऑल्दो दे आर बेस्ट सेलर्स. मैंने रद्दी में बेचा है. MBA की किताबें रद्दी में बेच दी बिकॉज दे आर कंप्लीटली फुल्ली एंड कंप्लीटली यूजलेस. फुल्ली एंड कंप्लीटली MBA की टॉप मोस्ट मार्केटिंग की बुक्स, कम से कम 1-1.5 लाख की किताब मैंने 300 रुपए में रद्दी वाले को उठा के बेच दिया. चलो भागो यार, आई हैव डन इट. ऑल्दो अभी भी compared to this, इसमें this मतलब is how to deal with this is something which is just nectar. वो कहा ही है ना, मैंने कल बताया ना कि वो भगवान कृष्ण के मुख से जो निकला हुआ ये भगवान की जो लीलाएं है वो, उसका क्या कंपैरिजन है, उसका क्या कंपैरिजन है ही नहीं. आप देख लो, आप पढ़ लो, आप जाओ क्या नाम है, आप यू रीड एनी बुक, नो बुक इज, मतलब कोई सारी मार्केट में आज बेस्ट सेलर है कल खत्म हो जाती है. मतलब तो ये इट स्टार्ट्स लाइक ए फैड एंड इट इज देन किक्ड आउट ऑफ मार्केट. वो हमारा ही नहीं, अब सभी के घरों से वो रद्दी में निकलती हैं, वो फिक्शन एंड दिस एंड दैट ऑल दैट. जबकि भगवत गीता आप देखिए, मतलब पिछले देख लो 5,000 यार, साल तो चल ही रही ये है. भगवत गीता जो है ना, और वो भी नहीं, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स से आज भी उतनी ही रेलेवेंट है. कैन यू बिलीव इट? मुझे तो लगता है फील होता है कि हम लोग लास्ट जनरेशन है जो अभी वरुण एक्सप्लेन कर रहे थे उन सारी सोशल एक्टिविटीज का झांकी लगाने का, जो झांकी शब्द जानते हैं कृष्ण भगवान की, राम भगवान की लीलाओं का रिप्ले के फॉर्म में उसको सुनने का, देखने का अवसर पाए. आज के बच्चे तो मोबाइल क्या पा गए हैं, उनको तो जैसे कुछ पता ही नहीं है. मैंने तो अपने बेटे को एक बार दिखाया, बी.आर. चोपड़ा वाली भी और रामायणा भी. तो खैर वही है, आज के बच्चे हैं तो उनके जो सवाल थे वो बड़े ही डिफरेंट थे. लेकिन वही है कि अभी तो ये बचपन है तो इसमें पिरोना पड़ता है चीजों को बार बार. तो सच में कभी सोचते तो बी.आर. चोपड़ा वाली भी जब देखते थे, मैं तो बहुत बार उसको बार देखा, खास करके उस एपिसोड्स में जिसमें कृष्णा भगवान गीता का उपदेश दे रहे हैं. हम सोचते हैं कि मतलब एक, कहते हैं ना कि उनकी छाया की छाया है वो प्रोग्राम, कितना पता नहीं इसमें छाया ही जोड़ दी जाए कि छाया की छाया है, वो इतना इन्फ्लुएंस कर पाई, इतना फील करा पाई. मुझे तो याद है कि उस टाइम पे जब यही चीज देखते थे उनकी, तो श्री कृष्णा जिन्होंने रोल प्ले किया है उनके प्रति भी एक बहुत श्रद्धा का भाव आता था. उनकी छवि को लेकर के लगता था कितनी बड़ी बात बता रहे हैं. कि वो भी बहुत अच्छा था जो भी बी.आर. चोपड़ा जी ने बनाया था उस टाइम के हिसाब से, वो भी मुझे बड़ा एनफ लगता था कि हाँ एक बहुत ग्रेट चीज भगवान ने हम पर कृपा की है, इतना डिटेल एक्सप्लेन कर रहे हैं.
हम लोग लास्ट जनरेशन है, मैं तो ऐसा ही देखती हूँ नहीं जितने ऐसा तक कुछ नहीं सुना है पढ़ा है। लेकिन तुम लोग भाई ऐसी बात नहीं है। एक तो जैसे तुम ही लोग सब एफर्ट कर रहे हो अपने बच्चों को क्या नाम है देने के लिए। अपनी राधा जो है वो शी इज थिंकिंग ऑफ डेवलपिंग सम बुक्स। शी हाँ इज डेवलपिंग सम स्मॉल बुक्स फॉर चिल्ड्रन। शी इज क्या नाम है मेकिंग मतलब लर्निंग द बैकग्राउंड। और हाँ जैसे तुम भी ये कर सकती हो अपने बच्चे के लिए अमर चित्र कथा वगैरह के कार्टून जो है ना छोटी छोटी पतली पतली जैसे बुकलेट की फॉर्म में कॉमिक्स की फॉर्म में है अमर चित्र कथा पे। तो वो भी दिखा सकती हो। उस पे भी आता है कृष्ण का कौन सा है उस पे ये जो यूट्यूब कृष्ण वो लीला जो हाँ यूट्यूब पे। ये लिटिल कृष्णा एक बनाई है लिटिल उन्होंने कृष्ण विद हाँ इस्कॉन। लिटिल कृष्णा। वो बिल्कुल वो तो बच्चे ऑथेंटिक है तो वो। मैंने तो ये हमारा जो ग्रैंड चाइल्ड है वो तो बिल्कुल वो हाँ मेस्मराइज्ड वो होके देखता है। देखता ही रहता है, तो वो देखता ही रहता है वो मेस्मराइज्ड लिटिल होके देखता कृष्णा। है। हाँ। हाँ और हाँ, अच्छा अरे एक इसने और भी मौसी देखा आप ये है। कर सकती हैं। अब तो हाँ कार्तिक का महीना निकल गया, लेकिन अगर आपको वो लगे तो कभी दामोदर अष्टकम सुना के देखिएगा। एक तो उसको पढ़ के और उसका ट्रांसलेशन, वो एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा को वो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो प्रेयर। सारे वेदों में जहां तक मुझे याद है सारे वेदों में वो उनकी सबसे फेवरेट प्रेयर है ऑफ लॉर्ड कृष्णा, दामोदर अष्टकम। ये मैं भेज दूंगा आपको, तो वो कभी आप पढ़ के सुनाइएगा मतलब। एंड उसका ट्रांसलेशन भी इट इज एब्सोल्युटली मतलब ब्यूटीफुल। इट इज मतलब रिमार्केबली ब्यूटीफुल। ठीक। मतलब वही जो उसमें जो रूपा ने कहा ना राधा ने कि क्या नाम है वो भगवान का जो वात्सल्य रूप जो है वो हाँ क्या नाम है उसके हाँ अंदर में वो बहुत सबलाइम लेवल पे है। बहुत हाँ ही ज्यादा। और मजे की बात यह है जो दामोदर अष्टकम जो लिखा है वो एक ऋषि ने लिखा है। कैन यू हाँ बिलीव इट। ए ऋषि हु इज अच्छा। सपोज टू बी टोटल ऑन द नॉलेज के प्लेटफॉर्म पे ज्ञानी होते हैं वो। ही हैज डेवलप्ड दैट लव फॉर दामोदर। हाँ भगवान की जो बाल्यकाल की लीला है he has absolutely fallen in love with that। वो कहता है मुझे नहीं चाहिए वैकुंठ मुझे नहीं चाहिए मुझे गोलोक वृंदावन धाम भी नहीं चाहिए। मुझे तो चाहिए कि लाइफ आफ्टर लाइफ हाँ उनका दामोदर स्वरूप जो है मेरे आंखों के सामने रहे। जी लेकिन वो ये वाली बात आपकी वैसे मौसी बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली हम लोगों की जनरेशन ही बड़ी अनफॉर्चुनेट हो गई है। ये तो अब मैं 40 साल की उम्र में ये डिस्कवर कर पा रहा हूँ, और अब जो हमारे आने वाली जनरेशन तो पता नहीं ये डिस्कवर कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। जैसा पापा कह रहे हैं, वी हैव टू मेक एक्स्ट्रा एफर्ट। अदरवाइज मैं सही बता रहा हूँ मौसी, देयर इज नो अदर थिंग जो आपको कोई शांति दे। मतलब जो काम कर रहे हैं हम लोग उससे शांति नहीं मिल पाती। उससे हाँ पैसा तो उसे कमा और सकता है बढ़ता है आदमी, पैशन के मोड और में और जाते हुआ। हाँ, और आदमी परेशान होता है और बिविल्डर अभी होता जैसे है। कि मैं राधा जैसी टीचर्स हैं वो ट्यूशन में लग जाती हैं फिर दिन भर काम करके आएंगी शाम को पैसे कमाने में लग जाएंगी बेवकूफों की तरह। वो भैया हाँ क्या कर लोगे एक तो नया सोफा ले लोगे तो वही क्या चीज हो है। गया नहीं ये इसीलिए मैंने सही। कर दिया, है। हाँ इसीलिए मैंने ये सब चीजें बहुत कम भी कर दी हैं। बहुत नहीं मैं ये ये कह रहा हूँ कितनी आपकी बॉडीली नीड्स हैं वही चीज है। है ना। धीरज आपको एक चीज वाई आपको शुड यू वाई डू यू वांट टू कॉम्प्लिकेट योर लाइफ। लेकिन कर रहे हैं। जैसे गधे को नहीं पता है ना वो डेली उसको ये नहीं पता है कि मुझे तो खाली खाली दिन भर में घास थोड़ी सी चाहिए जो फ्री में अवेलेबल है। लेकिन वो बेवकूफों की तरह धोबी के सारे कपड़े लेके घाट तक जाता है वहां पे जी और डंडे खाता रहता है रास्ते में और शाम को वो सारे धुले हुए कपड़े लेकर लौट के आता है थोड़ी सी घास के लिए। ये बिल्कुल मौसी सही। हम इसी सबका यही है। है ये एवरी मौसी वन पता है, ऑफ ये अस। सबका है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये मैंने पापा से भी शेयर किया था। इवन अंबानी की जो वाइफ है ना, हाँ 18-18 घंटे काम कर रही थी वो। वो अपने लड़के की ये शादी के अपने लड़के की प्रिपरेशन में। शादी का प्रिपरेशन में 18 और 18 आज हाउ घंटे मेनी पीपल रिमेम्बर उसकी शादी। अरे साली हाँ खत्म हो गई कुछ नहीं है। अब शादी वो खत्म हो गई, लगे पड़े हैं पागलों की तरह। वेयर तभी मैं कह रहा हूँ कि दे आर वेरी अनफॉर्चुनेट। वेयर जी जो कि ट्रू हैप्पीनेस इज इन रीडिंग दिस। बिल्कुल। इतना मतलब इट गिव्स यू सो मच प्लेजर, धीरज जी इंस्पिरेशन। ने हाँ एक और पढ़ी है जो श्री कृष्ण भगवान ये वात्सल्य की बात बता रहे हैं ना, ये हम्म सबसे सुप्रीम इसलिए भी है कि जिया जी एक मैंने रिसर्च पेपर पढ़ा था, तो उसमें एक कंक्लूजन ये निकला था कि अगर एक माँ और बच्चे का 5 इयर्स तक का
टाइम अगर बहुत अच्छे से गुजर जाए और माँ को ये समझ आ जाए कि उसको अपने बच्चे को कैसे प्यार करना है, तो वो कह रहे थे कि इस संसार की 60 to 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है ये। और Psychology देखो ना, culture- ये अक्रॉस कल्चर्स भी देखा जाता है। ये वेस्टर्न सोसाइटी में बच्चे को बिल्कुल जब छोटा होता है ना, तब से अलग सुलाना शुरू कर देते हैं। हाँ, थोड़े से टाइम में ही क्या विद इन ईयर और 2 उसको अलग कमरे, पहले तो अलग क्रेडिल में डाल देते हैं तुरंत, हाँ, माँ के पास से वो अलग, तुरंत उसको इंडिपेंडेंस सिखाते हैं। हाँ, वेरएज देखिए ओरिएंटल सोसाइटी में हम लोग का जो जापान में, चाइना में, वो डिफरेंट वे ऑफ हैंडलिंग चिल्ड्रन है। हाँ, दैट इज व्हाई दे आर स्टिल कर्म है, मतलब स्टिल सुपीरियर। ऑल्दो वहां पे वेस्टर्नाइज हो गए हैं वो भी, वो सब हाँ, अब कोई नहीं, सब वो सूट टाई ही पहन रहे हैं एवरीवन। हाँ, आप समझ रहे हैं कि इंडोक्ट्रिनेशन जो है ना पूरे वर्ल्ड का हो चुका है मटेरियलिज्म की तरफ, हाँ, इंक्लूडिंग अस जो जी, है इंडिया में भी। मतलब तो ये तुम बिल्कुल सही कह रही हो, ये सब सब पता भी है इनको बेवकूफों को। जी, 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 ऐसा नहीं है कि ये रिसर्च पेपर जो है, इट इज ऑल वेल नोन कि फर्स्ट 5 years ऑफ ए चाइल्ड आर द बेस्ट पीरियड, फॉर्मेटिव ईयर्स, हाँ, फर्स्ट 5 years, हाँ, जो उस समय आईक्यू डेवलप हो जाता है, जो उस समय। और वो देखिए वो जो जो जो, जो सोसाइटी इज मूविंग टुवर्ड सिंगल पेरेंटहुड, सिंगल पेरेंटहुड। हाँ, अब देखो ना, मैंने तो मतलब कर वो आप दिया है। बच्चे से लव क्या पैदा होगा, तो वो तो मतलब कंसीव करने पे ही मारे दे डाल रही हैं 70-80%। तो लड़कियां जो हैं वहां पे अमेरिका में 7-8 महीने तक का बच्चा हो गया है पेट में, तब भी उसको किल करे दे रही हैं। वो साले लॉज पास कर रहे हैं, काम कोई करना नहीं चाहता, कामचोर नंबर 1 हो गए सबके सब। एक्चुअली बेसिकली इसका रीजन यही है कि एवरीवन हैज बिकम कामचोर, काम ना करना पड़े। हाँ, और वो जो है उनका अगर मैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या कर लोगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस करके क्या कर लोगे, व्हाट विल यू डू? दैट इज अ कंप्लीट सर्विट्यूड। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मींस कि क्या नाम है, तुम्हारे को सारी उम्र के लिए नौकर बन के रहो। हाँ, बिल्कुल, लेकिन ये है कि हम लोग जो है ना, अब ठीक है, जहां से लाइफ है वहां से थोड़ा सा क्या नाम है, अपने आप को अगर एटीट्यूडनली चेंज हो जाए, जैसा तुमने कहा है ना, क्योंकि तुम्हारी कोलीग्स लगे पड़े रहते होंगे क्या नाम है उसमें, ऑनलाइन ट्यूशन कर रहे होंगे, और मतलब घर पे बुला के बच्चों को ट्यूशन कर रहे हो टीचर्स। अरे भाई, मैं एक जने को जानता हूँ, वो 1-2 बजे तक तो उसका क्लास होता है, 2 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक वो एक घर से दूसरे घर में जाता रहता है, क्योंकि यहाँ पे ट्यूशन में काफी लंबा जो है, और पीसीएम में तो बहुत पैसा है। अच्छा, वो किस लिए? मतलब अपनी बीवी और लड़की को आराम देने के लिए, मे भी, मतलब जैसा उसका कहना है, मतलब उनके समझ में नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अपनी, व्हाट इज द गारंटी दैट इफ यू आर नॉट विद योर गर्ल, उसके बाद में पर्सनल तुम उसको अटेंशन नहीं दे पा रहे हो, तो सारा तुम्हारा मतलब पैसे अवेलेबल कराना, मे बी इट इज काउंटर प्रोडक्टिव। शी इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रेंजर टू यू। सारे प्रोफेशनल्स के साथ तो यही हो रहा है अपने बच्चों को, नहीं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, यू हैव टू जीजा जी वर्क। एक बताइएगा, एक चीज बताइएगा कि जैसे मैंने ना, अब भाई मैंने अपनी जिंदगी से ये कोर्स चीज सीखी थी जो मैं अपने बेटे को बताती हूँ, सिखाती हूँ, इम्प्लांट किया है मैंने उसके अंदर ये ट्रस्ट डेवलप किया धीरे धीरे करके कि तुमको भगवान बहुत प्यार करते हैं, जैसे मैं प्यार करती हूँ, इससे भी बहुत ज्यादा भगवान तुमको प्यार करते हैं, क्योंकि उन्हीं के अंदर ये एबिलिटी है, करेक्ट। उन्हीं वही स्रोत है प्यार का। और तुम बहुत भाग्यशाली हो बेटा, और तुम ना भगवान से जो मांगोगे तुम्हें सब मिल जाएगा, इनफैक्ट कभी कभी तो बिना मांगे मिल जाएगा। मैं उसके आगे ना कभी कभी ये बात खूब बार कहती हूँ, जब मैं पूजा करने बैठती हूँ तो मेरे बगल बैठ जाएगा, जो जो मैं करती हूँ वो सब वो करता है, इनफैक्ट वेरी कभी गुड। कभी तो मुझे रिप्लेस करके कि मैं करूंगा। करेक्ट। तो वो कई बार ना ऐसे मुझे बोलेगा आकर के कि ना मैंने तो भगवान जी से कह दिया है, अब तो ये कर देंगे ना। मैं कहा हाँ बिल्कुल, कोई डाउट ही नहीं है बेटा, ये कर देंगे।
और बाई चांस की बात ये कि अभी उसके वर्डली गॉड तो हम ही लोग हैं, तो हर चीज हम लोग अरेंज कर ही देते हैं। तो वो बहुत कूद कूद के बात कहता है कि मम्मी देखो, सुन ली भगवान जी ने मेरी बात, सुन ली भगवान जी ने मेरी ये बात। वेरी तो गुड। मैं पूछ रही हूँ कि ये सही है? हाँ, नहीं 100% सही है, जीजा बिल्कुल सही है। जीजा जी, हम्म। मैं जरा मैं इसमें एक हाँ बात हाँ ऐड करूंगी जो रूपा ने हैं? कहा। जीजा जी, मैं इसमें एक बात ये ऐड करना चाहूंगी कि जो रूपा ने कहा है कि जैसे तुमने भगवान से मांगा और भगवान तुम्हें देंगे, लेकिन जीजा जी इसमें एक बात और भी ऐड करना चाहिए कि अगर भगवान तुम्हें नहीं भी दे रहे हैं तो उनके हायर पर्पस को समझो। क्योंकि जीजा जी, जो बच्चा है वो तो मेटेरियलिस्टिक चीजों को मांगेगा, और अगर उसको नहीं मिलती है तो उसका विश्वास टूटेगा। तो हमें उस बच्चे को एक आगे का स्टेप भी बताना चाहिए कि बेटा, अगर आपने भगवान से मांगा है तो भगवान बिल्कुल देंगे, लेकिन अगर भगवान कभी नहीं भी देते हैं तो फिर आप भगवान का पर्पस समझिए, आपको भी कभी भगवान की बात समझनी पड़ेगी। आई थिंक सो जिया जी। ये बिल्कुल सही कह रही है रवि, बिल्कुल सही। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि बच्चे की स्टेज में अभी ये चीज नहीं है। जैसे बच्चा, एक उम्र होती है ना। हाँ, जी, मैं आपको हाँ, ये बात बताऊं, तुम्हारी बिल्कुल सही है। मैं आपको हाँ क्या बिलीव करती हूँ। एक छोटा बच्चा जो चाहे 3 साल का हो, वो एक सोल है। तो हाँ उसके सामने कंप्लीट बात रखिए, इनकम्प्लीट बात से सोल कंफ्यूज हो जाती है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मैंने देखा जैसे है, हम एक लोग बहुत एक बार चीज है, बिल्कुल ये मैं तुमने जो कि कहा है बच्चे ना नहीं समझते। कि उसको ये कहा जा सकता है बच्चे को कि बेटा जो भगवान तुम्हारे लिए अच्छा होगा ना वो करेंगे। यस। यू सी, हाँ उनको जो तुम्हारा जो रियल इंटरेस्ट है, जो तुमको एक्चुअली चाहिए, वो तुम्हें अवश्य देंगे। यू सी, और जो ये भी बात जो रूपा ने कही है ना कि अब वो स्टेज धीरे धीरे करके डेवलप करो, बट वो भी ठीक है कि अगर वो थोड़ा भी समझदार हो गया है तो उसको थोड़ा थोड़ा पर्सपेक्टिव में चीजें रखना, उसको आना चाहिए कि भाई दुख भी आता है जीवन में। तो वो सीखेगा, वो करेगा, वो आपको देखेगा ना, हाउ यू हैंडल स्ट्रेस, हाउ यू हाँ हैंडल प्रॉब्लम्स इन लाइफ, तो वो सीखेगा। यू नो, हाँ कि आप क्या करती हैं ऐसे परेशानी के टाइम में। डू यू स्टार्ट प्रेइंग और यू बिकम टोटली एजिटेटेड एंड यू बिकम मतलब स्टार्ट बिकमिंग एंग्री एट अदर्स, का नाम है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स होते हैं ना। हाँ मटेरियलिस्ट का रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग होता है और डिवोटी का रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग होता है। तो वो हाँ देखेगा तो फिर समझेगा कि भाई यहाँ कैसे आदमी अपनी अपनी पोजीशन को मेंटेन कर सकता है अंडर स्ट्रेसफुल सिचुएशन। हर चीज वो हाँ आपको जो आप चाहते हैं वो शायद ना भी मिले, क्या नाम है, हाँ। दैट आई आई डोंट नो मतलब। तो ये लेकिन तुम मैं लोग गो अहेड कंप्लीट कर लो। नहीं नहीं, मेरा तो हो गया। हाँ एक्चुअली इसमें इसमें ना एक थोड़ा सा ये जो क्योंकि आप जैसे मदर हैं राइट, तो यू आर एन एडल्ट, तो इसलिए मैं जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो स्पिरिचुअल मास्टर स्पेशली श्रीला प्रभुपाद ने जो हमको बताया है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप उसको जैसे भी रखना चाहें। एक तो बात जो पापा ने कही वो बिल्कुल सही कही कि आपके कहने से ज्यादा आपके करने से दैट इज मोर, दैट विल हैव एन इम्पैक्ट। ये बात पक्की है। बिल्कुल ट्रू। ये तो मैंने खुद अपने लड़के के साथ भी देखा है कि जो वो हाँ बिहेवियर को फॉलो करता है रेदर देन मैं उसको कोई चीज कहूँ। अच्छा, दूसरी चीज हाँ जो शीला प्रभुपाद कहते हैं कि हमें हमारी जो रिलेशनशिप है अभी लॉर्ड के साथ, पहली बात तो आपकी बड़ी अच्छी चीज है कि यू आर हेल्पिंग हिम एस्टेब्लिश ए रिलेशनशिप विद गॉड। एक तो हाँ ये कम से कम क्योंकि लेकिन पहली बात तो लॉर्ड इज नॉट अवर ऑर्डर कैरियर। मतलब हाँ ये नहीं है कि ये शिला प्रभुपाद बार बार स्ट्रेस करते रहे हैं, ये मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि लॉर्ड कृष्णा इज नॉट अवर ऑर्डर कैरियर। अच्छा, फिर लेकिन लेकिन लॉर्ड ने ये भी कहा है कि मेरे पास 4 तरह के लोग आते हैं। एक जैसे जिज्ञासु, एक मतलब अलग, उसमें एक ऐसा भी अर्थ हो जिसको परेशानी है वो मेरे पास आता है, एंड लॉर्ड चाहते भी हैं कि वो आए उसके पास, उनके पास रिलीफ मांगे। लेकिन अब भगवान का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कल्याण करना। और जब भगवान को पता है कि जैसे कोई चीज आप मांग रहे हैं, मटेरियल मांग रहे हैं, आपको उसका पूरा आइडिया है नहीं कि उसको वो आपके लिए कितना कल्याणकारी है या नहीं है, तो भगवान आपको देंगे लेकिन पहले आपको प्यूरिफाई करके देंगे। हाँ
आपको प्यूरिफिकेशन जब हो जाएगा, जब व्हेन यू कैन एक्चुअली हैंडल दैट, यही लॉर्ड कृष्णा और बाकी देवों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। जैसे आप शिव भगवान के पास मांगने जाइए, वो आपको दे देंगे। रावण को भी उन्होंने कई वो दिए। आशुतोष, ब्रह्मा जी के पास चले जाइए, उन्होंने भी दिए। हिरण्यकश्यप को दे दिया उन्होंने, वो जो भी बेनेडिक्शन उन्होंने मांगा, लेकिन वो उसके लिए भी डिस्ट्रक्टिव था और पूरे वर्ल्ड के लिए भी डिस्ट्रक्टिव था। लेकिन लॉर्ड कृष्णा कभी ऐसा नहीं करते। लॉर्ड कृष्णा पहले आपको प्यूरिफाई करेंगे, देंगे वो आपको, लेकिन जब आप उसे हैंडल कर सकें। तो ये एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे लगता है कि जैसे हम एज एन एडल्ट उस मैच्योर अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ें, तो फिर बच्चे भी उस डायरेक्शन में जा सकते हैं। वेयर, क्योंकि भगवान इज नॉट अवर ऑर्डर कैरियर, ही इज नॉट हेयर टू प्लीज अस। ये बिल्कुल पक्का है। ये भगवान आप मांगते रहिए, आप जितना तो यू विल बी कम आउट मोर डिसअपॉइंटेड कि मैंने तो भगवान से मांगा था, मुझे मिला क्यों नहीं। बस भगवान नहीं है, आप यही, जैसे पांडवों को देखिए, पांडवों को यही था पिछले कुछ श्लोकों पहले कि भीष्म पितामह कहते हैं कि भाई यू आर सो पायस, पर तुम्हें इतनी कठिनाइयां बीत करनी पड़ी, काटनी पड़ी, बट ये काल है, काल इज लॉर्ड कृष्णा, तो वो आपको कभी कभी वो काटना पड़ता है, क्योंकि भगवान शायद आपके थ्रू ही कोई चीज ठीक करवाना चाहते हैं, आपके थ्रू रिलीजन एस्टेब्लिश करवाना चाहते हैं। तो ये मेरे को लगता है कि श्रीला प्रभुपाद जी हमको कई बार बोलते रहे कि लॉर्ड कृष्णा इज नॉट अवर ऑर्डर कैरियर। तो हमें उस लेवल से उठना है कि भाई टू स्टार्ट लविंग गॉड, इवन दो हमें शायद वो मटेरियल चीजें नहीं मिल रही, फिर भी वी हैव टू गेट टू दैट लव ऑफ गॉड। तो ये मेरा वो है टेक ऑन। नहीं नहीं, बिल्कुल सही समझ गया इस बात को। हाँ हाँ नहीं नहीं, पर यू आर ऑन द वेरी करेक्ट पाथ। अभी हम लोग कंक्लूड करेंगे, जी इसलिए करें, इट हैज बीन वेरी एनकरेजिंग। और भाई कभी कभी ये वीकेंड्स पे तो आ ही सकती हो। टुडे यू हैव कम, वी आर जी एक्सट्रीमली हैप्पी, दैट मच आई वांट टू एक्नॉलेज। क्योंकि देखो तुम्हारे लोग जैसे लोगों के आने से ना ये फायदा होता है कि भाई एक एक हमारी ब्रॉडर अंडर, बिकॉज यू आर फेसिंग द रियल वर्ल्ड टुडे, आज की डेट में हम अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं, बट आई डू नॉट गो आउट ऑफ द हाउस नाउ, आई एम रिटायर्ड, whereas you are still going out earning a livelihood. So both of you add a very rich value to remember these readings. That is the contribution you make. Not only you are doing the service to the Lord, but other people also, no. So that is what I want to say, and I would want to conclude. Okay. हाँ जी। हरे जी कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। थैंक यू।